Hello students, good morning everyone. How are you? I am absolutely fine here and hope to you same. Students, it's 11th class chemistry and today we have a very unique topic, resonance and resonating structures. What is the phenomena resonance? इसके बारे में बात करेंगे but before starting this topic we will talking about the hybridization that is left like sp3d2 hybridization. मैंने आपको ये लास्ट अपनी जो प्रीवियस क्लास है उसमें मैंने करने के लिए दिया था बट स्टूडेंट्स थोड़ा आप इसमें मिस्टेक कर गए थे, इसके लिए मैं दोबारा बता रहा हूँ sp3d2 एंड sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहले इसको ले लेते हैं sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, ओके। व्हाट इज़ sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन? सो लिसन एवरीवन, बी केयरफुली दैट व्हेन 1s 3p and 2d atomic orbitals are mixed together and convert into 6 new sp3d2 hybrid atomic orbitals of similar energy. Such type of hybridization is known as sp3d2 hybridization. I am repeating again my definition, that is when 1s 3p and 2d atomic orbitals of similar energy are mixed together and convert into 6 new sp3d2 hybrid orbitals. This is called sp3d2 hybridization. Now we will talking about some examples of. So what is the example? So here sp3d2 मैंने आपको कल भी बताया था इसके बारे में, that is SF6 sulfur hexafluoride, sulfur hexafluoride, and here sulfur is the central atom. Sulfur, its atomic number is 16 and electronic configuration 286. And now you can write the electronic configuration of third cell in SPDF like 3s2 3p4. Now you have s orbital and p orbital, so you can also write 16s in ground state, 16s in ground state, and you can write 3s orbital 3p orbital. Number of electrons in s orbital 2, number of electrons in p orbital 4. You can also use the d orbital, okay. This is 3d. Next, 16s in primary excited state. मीन्स आपको तब तक एक्साइटेड स्टेट में जाना है जब तक कि ये जो आपके पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं जब तक कि ये बिल्कुल पूरी तरह से ब्रोक ना हो जाए, मीन्स सिंगल ना रह जाए। दिस इज़ p, दिस इज़ d, 3s 3p and 3d. One electron from this pair will go here, this one here and this one also here. Then you will got this type of structure, this type of contribution of electrons like this, like this. Now 16s in secondary excited state, okay. So this is 3s, this is 3p and this is 3d. So this pair will go here like this. मीन्स जब तक पेयर पूरी तरह से ब्रोक ना हो जाए तब तक आपको एक्साइटेड स्टेट में जाना है, यहाँ कुछ नहीं है। नाउ चेक प्लीज़, 1s 3p एंड 2d दैट गोज़ टू sp3d2 hybridization. Now we can take also another method to calculate the hybridization, that is SF6. Number of electrons in sulfur outermost cell में 6 इलेक्ट्रॉन प्लस क्लोरीन में 7 मल्टीप्लाई बाय 6 plus 7 6 ja 42, that is goes to 48 and divided by 8, then 8 6 ja 48. 6 new orbitals goes to sp3d2, 1s 3p and 2d. इस तरह से करना है स्टूडेंट्स। ये हाइब्रिडाइजेशन हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। अब दूसरे में हम चलते हैं, एक और अभी आपका बच रहा है sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d3 hybridization. How you can define the term?
sp3d3 hybridization, then you can also write 1s when 1s 3p and 3d atomic orbitals of similar energy are mixed together, then formed 7 new sp3d3 atomic orbitals of similar energy. This is called sp3d3 hybridization. Define करना है आपको इसको. When 1s 3p and 3d atomic orbitals of similar energy are mixed together, then form 7 new sp3d3 atomic orbitals of similar energy. That is called sp3d3 hybridization. अब इसके एग्जाम्पल की हम बात करते हैं. इट्स एग्जाम्पल इज़ IF7 में सेंट्रल एटम है आयोडीन. इट्स एटॉमिक नंबर इज़ 53. यू विल गॉट 2 8 18 2 8 18 7. चेक प्लीज़. 18 2 36 एंड 10 46 एंड 7 53. अब यहाँ आउटर मोस्ट सेल को आप SPDF में लिख लीजिए 5s2 5p5. अब यहाँ आप चलिए आयोडीन को लेकर के 53 आयोडीन इन ग्राउंड स्टेट. जब आप इसको ग्राउंड स्टेट में लेकर जाओगे तो आपको 5s बनाना होगा, आपको 5p बनाना होगा, दिस इज़ 5p. आपको 5d भी बनाना होगा, दिस इज़ 5d. नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स फिल कर लीजिए. S सब सेल में है 2 इलेक्ट्रॉन, P सब सेल में है 5 इलेक्ट्रॉन्स. चेक प्लीज़. ये लीजिए. अब आप चलिए 53I इन प्राइमरी एक्साइटेड स्टेट. प्राइमरी एक्साइटेड स्टेट में जब आप जाओगे तो 1 पेयर वहाँ पर ब्रोक होगा. ओके, प्राइमरी एक्साइटेड स्टेट में दिस इज़ 5s, दिस इज़ 5p, दिस इज़ 5d. जब आप इसमें प्राइमरी एक्साइटेड स्टेट में जाओगे तो ये जो पेयर है टूटेगा यहाँ से. ये ऐसे ही रहेगा. अभी ये वाला पेयर भी अभी ऐसे ही रहेगा, बट ये ब्रोक हो जाएगा. ये वाला टूट करके यहाँ और ये वाला ब्रोक होकर के नेक्स्ट में पहुंच जाएगा. आगे बढ़े हैं आप. 53I इन सेकेंडरी एक्साइटेड स्टेट. जब आप सेकेंडरी एक्साइटेड स्टेट में जाओगे अपने ऑर्बिटल्स बना लीजिए 5s 5p और दिस इज़ 5d. जब यहाँ आप सेकेंडरी एक्साइटेड स्टेट में जाओगे तो ये वाला जो पेयर है ये भी ब्रोक होगा. ये एक अकेला पेयर आपका इस बार रह जाएगा, ये यहाँ और ये यहाँ. चलिए 53 आयोडीन इन टर्सरी एक्साइटेड स्टेट. टर्सरी एक्साइटेड स्टेट में जब आप जाओगे दिस इज़ 5s, दिस इज़ 5p एंड दिस इज़ 5d. और जब आप इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को देखेंगे तो ये पेयर भी इस बार ब्रोक हो जाएगा एक्साइटेड स्टेट में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है आगे को जंप करता है. वही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कर रहा है. एवरी टाइम यू कैन सी. यहाँ भी देखा आपने इलेक्ट्रॉन ने यहाँ से जंप करके इधर गया, यहाँ से जंप करके फिर से आगे गया, ये वाला आगे चला गया, इस तरह से. अब आप चेक करके जब देखेंगे तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में है, 3 इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में है और 3 इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में है. दिस इज़ sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन. इस तरह आप इसको प्रूव कर दोगे. अब रही बात आपको अगर दूसरे मेथड से भी अगर आपको इसको करना है तो IF7 में आयोडीन के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और फ्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं. मल्टीप्लाई बाय 7. सो 7 + 7 7 = 49 goes to 56 डिवाइडेड बाय 8. नाउ 8 7 = 56. 8 7 7 new orbitals are formed in sp3d3, 1s 3p and 3d. 3 3 6 और 1 7. दिस इज़ sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन. स्टूडेंट्स आपका ये हाइब्रिडाइजेशन मैंने आपको बता दिया. नेक्स्ट आपको एक चीज़ हाइब्रिडाइजेशन के बारे में और मैं बता देना चाहता हूँ. कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स के बीच में भी कभी कभी जो हाइब्रिडाइजेशन आपसे पूछ लिया जाता है. लाइक ये मैं आपको रूल बता रहा हूँ. सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड, ऐसे समझ लीजिएगा. सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड. अगर ये पोजीशन कार्बन एटम के दोनों ओर है, दोनों तरफ अगर है sp3 तो देन यू विल गॉट sp3 हाइब्रिडाइजेशन. ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर आपका होगा जब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कार्बन के दोनों ओर होगा. लेकिन अगर डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा तो इस सिचुएशन में आप लिखेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन. और अगर सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड होगा तब भी आपका होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन. और कंडीशन अगर चेंज होती है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कार्बन और सिंगल बॉन्ड देन द कंडीशन विल बी sp हाइब्रिडाइजेशन. और अगर सिंगल बॉन्ड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड देन यू विल गॉट sp हाइब्रिडाइजेशन. ये भी आप याद रखना. एग्जाम्पल के तौर पर आपसे कह दिया कि C4 और H10, C4 H10 के हर कार्बन एटम पर हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करो, ऐसे आपसे क्वेश्चन कर दिया. तो C4 हैं तो आप C को 4 ही लिखोगे. हाइड्रोजन 10 है तो 1 2 3 1 2 3. 4 अभी लेफ्ट हैं, 6 आप यूज़ कर चुके हो हाइड्रोजन के, तो 1 2
1 2। एक सिंगल आपका इस तरह से सिंगल बॉन्डिंग, ये एक ब्यूटेन है ऐसे मान लीजिए। अब आपसे पूछा गया है कि कार्बन, हर कार्बन एटम पर कितने कार्बन है, 1 2 3 और 4, इतने कार्बन एटम आपके यहाँ। अब हर एक कार्बन एटम पर आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन। तो फर्स्ट कार्बन एटम में देख लीजिए क्या सिचुएशन है, सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड का रूल आपका क्या कह रहा है, sp3। यहाँ पर आप लिख देंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पर भी आप लिख देंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पर भी लिख देंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पर भी लिख देंगे sp3। तो ये हो गया हाइब्रिडाइजेशन। अब मैं आपको चलता हूँ लेकर के रेजोनेंस की तरफ, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, रेजोनेंस इज़ ए फेनोमेना। A resonance is a phenomena, or you can define the term resonance. The resonance is a phenomena in which the structure of a compound is represented, the actual structure of a compound represented by many times. Okay, this is called resonance। मतलब जब किसी कंपाउंड के स्ट्रक्चर को कई तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस, एंड दीज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो रेजोनेंस के बारे में हम चलते हैं। द फिनोमेना इन विच द स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपाउंड रिप्रेजेंटेड बाय मैनी टाइम्स। ओके, दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस एंड द स्ट्रक्चर्स आर नोन एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। एग्जाम्पल के तौर पर CO3 को देखते हैं। CO3 के अंदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखते हैं। तो CO3 को जब आप बनाओगे तो CO3 का बनना कुछ इस तरह से है। एक तरफ यहाँ इसका डबल कोवेलेंट बॉन्ड रहेगा, और दूसरी तरफ आपका जो जब देखोगे आप तो दूसरी तरफ भी एक तरफ और एक तरफ का आपका रहेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, और एक तरफ रहेगा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। ये स्ट्रक्चर, सॉरी यहाँ पर आई थिंक दैट कि यहाँ रहेगा ओनली सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, नॉट कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहाँ निगेटिव चार्ज, यहाँ भी निगेटिव चार्ज, इसको बना करके आप देख लेना है डॉट फॉर्म में। अब बात आती है कि इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने होंगे। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप इसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। आपने इसके स्ट्रक्चर्स को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, आप अगर चाहो तो इसके स्ट्रक्चर को इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। डबल कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ, सिंगल यहाँ, सिंगल यहाँ। जिसके पास सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी आप दिखाओगे। आप इसको इस तरह से दिखा सकते हो। अब आप आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम और देखेंगे, तो यहाँ देखेंगे आप CO3 निगेटिव। तो इस बार डबल कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड। तो ये हो गया आपका, ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपने शो कर रहा है। इससे ज़्यादा ये शो नहीं कर सकता। 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये शो कर रहा है, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2 और कंडीशन नंबर 3। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को आपको इस तरह से बनाना है, ठीक है। पहले आपने देखा डबल कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ था, फिर यहाँ था, और फिर अब ऊपर पहुँच गया है। अब देखिए मैं आपको बता दूं एक शॉर्ट ट्रिक है इसके बारे में कि ये 3 क्यों शो कर रहा है। देखिए आप यहाँ देख लीजिए, जो साइड एटम्स है इसके, जो इसको बनाने में हेल्प कर रहे हैं, उन एटम्स के नंबर काउंट कर लीजिए, उनके नंबर है 3। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली कह सकते हो कि 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके बनेंगे। एक ट्रिक है, आप अगर देखें नेक्स्ट आपको मिलता है NO3 निगेटिव, तो NO3 के निगेटिव के कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, 3 बनेंगे। ऑफकोर्स ये रहे 3, ठीक है। इस तरह आप बना सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर PO4- के आप कितने बना सकते हो, PO4- के 4 बना सकते हो, ये रहे 4। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ये आप आज की क्लास में जो है बना करके मुझे बताएं। एक तो NO3 निगेटिव का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, PO4 निगेटिव का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। PO4 निगेटिव की जगह पर अगर PO4 निगेटिव का बन जाए तो बना देना, PO4 निगेटिव का बन जाए तो भी बना देना, PO4 निगेटिव का बन जाए तो भी बना देना, और PO4 निगेटिव 4 टाइम बने तो वो भी बना दें। जो एक बनाना है आपको चारों में से, चारों कंडीशन में से, ठीक है। ये आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको ये 2 जरूर बना करके मुझे सेंड करने हैं। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग एवरीवन।